cover your competency number 1.10, prescription writing. Prescription writing theoretical नहीं है, ये practically आपको करना पड़ेगा. Not just here in second year, but also once you actually get your degree, once you graduate, you start seeing patients daily. N number of times you have to write this. So it will be good that you actually, develop this skill. अभी से practice करना शुरू करो, so that you don't make any mistake in a prescription. Okay? So what are we going to learn today? We will learn what are the different parts of a correct, complete and legible generic prescription. Please don't talk. ठीक है? And also, once you have known, once you have understood what a good, complete and legible prescription is, after that we'll just do the brainstorming, not in today's class but in the subsequent practical classes, that we'll give you some incorrect, some wrongly written prescriptions, and then you have to find out what are the mistakes in that prescription, so that you develop the skill that you should know what you're not supposed to write on a prescription, and you should know what you're supposed to write in a prescription, and not just what, how you are supposed to write a prescription. That is also very important. Okay? So what is a prescription? हम लोग इतनी देर से prescription writing की बात कर रहे हैं, correct incorrect की बात कर रहे हैं. So prescription है क्या? I am sure everybody must have seen a prescription, है ना? सभी ने देखा होगा. Whenever you see a doctor, he writes some medicine, he gives you a piece of paper and you take it and you follow it. That piece of paper is nothing but a prescription. अभी तक लगता होगा ये तो बस एक कागज है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. हो सकता है सब कुछ लोगों को पता हो. So prescription is a very important legal document. Please understand this. If you are writing a prescription, that means daily you are writing some legal document. And इसमें irony क्या है? तुम अपने हाथ से ही अपने फेवर में या अपने अगेंस्ट में एविडेंस क्रिएट करो. As simple as that. अब what do I mean by this? तुम खुद ही एविडेंस क्रिएट कर रहे हो अपने फेवर में या अपने अगेंस्ट. If you have written a correct prescription, no one is going to harm you. No one can harm you, even if someone wants to challenge your prescription. But if you have technically written a correct prescription, nothing is going to happen. But at the same time, if you have written an incorrect prescription, incorrect not by virtue of its contents, but even by virtue of how you have written. हो सकता है तुमने सही लिखा हो, लेकिन तुमने लिखा ही इतने गंदे तरीके से है कि वो सही होते हुए भी गलत है. ठीक है? तो तुमने अपने हाथ से अपना एक फरमान जारी कर दिया कि आई एम द कल्प्रिट, कम एंड पनिश मी. दैट इज व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट. अंडरस्टूड? सो प्रिस्क्रिप्शन इज नथिंग, इट्स जस्ट लाइक अ स्क्रिप्ट. लाइक कोई बुक होती है, कोई ड्रामा होता है, कोई स्किट होती है. वी ऑलवेज राइट अ स्क्रिप्ट बिफोर. डायलॉग्स कौन से हैं, किसको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस टाइम एंट्री होगी, किस टाइम एग्जिट होगी. सेम स्क्रिप्ट जब आप एज अ डॉक्टर लिखते हो for your patient, that is your prescription. That means that prescription is the सारांश. उसमें सब कुछ होगा कि तुम्हारा पेशेंट है, उसको क्या प्रॉब्लम हुई. ठीक है? What is the diagnosis? What are the symptoms that he came with? ठीक है? Based on the symptoms तुमने क्या diagnosis बनाई, तुमने उसको क्या suggest किया investigation. Based upon all your workup, what medicines or what drugs you have suggested or advised the patient. कितने दिन के लिए खानी है, कैसे खानी है, यदि कोई प्रॉब्लम होती है तब क्या करना है, उसको वापस आके दिखाना है कि नहीं दिखाना है. ये सारी कहानी तुम्हें प्रिस्क्रिप्शन में लिखनी है. सो दैट इज योर स्क्रिप्ट. ओके? सो अगर हम डिफाइन करें, जनरली नो वन आस्क्स दिस, बट पता होना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम अ फिजिशियन. लाइक यू विल गिव अ रिटन ऑर्डर टू द फार्मासिस्ट और द केमिस्ट एंड ऑल्सो टू द पेशेंट. ठीक है? टू प्रिपेयर और डिस्पेंस अ थेरेप्यूटिक एजेंट इन अ पर्टिकुलर डोजेज टू बी एडमिनिस्टर्ड टू पेशेंट एज डायरेक्टेड. ये सारी चीजें प्रिस्क्रिप्शन में आती हैं. ठीक है? सो व्हाई आर वी स्ट्रेसिंग अपॉन दिस? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज अ मेडिको लीगल डॉक्यूमेंट. सो एक रूल बना लो इन योर लाइफ, एक डिक्टम बना लो कि कभी भी प्रिस्क्रिप्शन जब तुम लिखते हो, ऑलवेज कीप अ कार्बन कॉपी ऑफ इट. जनरली इन मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वो ऑलरेडी कार्बन कॉपी चिपकी भी होती है. ऊपर वाला पेज हम पेशेंट को दे देते हैं और नीचे की कार्बन कॉपी हम उसको रख लेते हैं. दैट इज, ऐसा नहीं कि वी वांट टू वेस्ट पेपर. देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. वी वांट टू सेव दिस डॉक्यूमेंट.
बिकॉज नाउ डेज अब तो इट इज मोर प्रेवलेंट नाउ, पहले इतना नहीं होता था, नाउ तो एवरी सेकंड थर्ड पर्सन कैन कम एंड चैलेंज यू कि on what grounds have you given this drug to me, why have you done this, why haven't you done that. So you should always have your evidence to protect you first of all. ठीक है, so always keep a copy of your prescription with you. जो भी तुम पेशेंट को देते हो उसकी एक कॉपी अपने पास रखो. अगर नहीं करते हो and if you ignore this prescription can be used as an evidence in court against you and decisions can be taken based upon this prescription. That is why we say it is a medico-legal document. ठीक है. थर्ड पॉइंट अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है. आप प्रिस्क्रिप्शन जो भी लिखते हो लेजिबल होना चाहिए, नीट एंड क्लीन प्रिस्क्रिप्शन एकदम. अगर हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो इंप्रूव करनी शुरू कर दो. डेटेड, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ईच एंड एवरी कॉम्पोनेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? प्रिस्क्रिप्शन में डेट डालने क्यों इंपॉर्टेंट है? कैन एनीवन टेल मी? फॉलोअप्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है. यू कैन ट्रेस बैक कि ये पेशेंट तुम्हारे पास फर्स्ट कब आया था, तुमने इसको कब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, इसको कब फॉलोअप में आना है. दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज समझो इन चीजों को, दीज आर इंपॉर्टेंट. अगर तुम्हें इनकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी तो ये तुम कभी नहीं भूलोगे. एंड आई डोंट वांट कि तुम सिर्फ थ्योरी के लिए प्रिपेयर हो, तुम अपनी लाइफ के लिए प्रिपेयर हो रिगार्डिंग प्रिस्क्रिप्शन. ठीक है. See, you all know what is Schedule H drugs. What are they? They can be dispensed only by order of a doctor. A patient cannot just right away walk into a pharmacy and just say, "Give me this drug," and the pharmacist will give. No. So, and these are important class of drugs. There are certain reasons because of which they are under this Schedule H. Habit forming होती है, addiction हो सकता है. There are so many things linked with those drugs. तो अगर आपने आपके प्रिस्क्रिप्शन पे ऐसी कोई ड्रग लिखी है विच इज कमिंग अंडर दैट क्लास ऑफ ड्रग, ठीक है, और आपने डेट नहीं लिखी, आपने लिख दिया ओके कोई भी ओपियोइड लिख दी फॉर 5 days बिकॉज ऑफ द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, यू थॉट ही हैज टू टेक दिस फॉर ओनली फॉर 5 days, बट यू फॉरगॉट टू राइट द डेट. नाउ व्हाट विल हैपन? So as if he is dependent on morphine, or he gets there are so many reasons that now patient wants I should take morphine for more number of days. So what he'll do, he'll just go to the pharmacy, show the prescription and take your medicine. फिर क्या होगा? 5 दिन बाद दूसरे के पास जाएगा, show your prescription, take the medicine. वो भी गलत नहीं है, फार्मासिस्ट भी गलत नहीं है. Who is at fault? You, the doctor. You the doctor. ठीक है. और इन केस अगर इस पेशेंट को कुछ भी अनटूवर्ड हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस ड्रग एंड दिस प्रिस्क्रिप्शन इज चैलेंज्ड, तो क्या होगा? तुमको पनिशमेंट मिलेगी, जेल जाओगे. जेल तो नहीं, बट यस यू विल बी चैलेंज्ड एंड यू विल बी पनिश्ड. मजाक की बात नहीं है, दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग बिकॉज यू आर एट फॉल्ट बिकॉज यू हैव नॉट पुट द डेट एंड यू हैव एनकरेज योर पेशेंट टू डू दिस प्रैक्टिस, राइट? सो टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. This is for your theory purpose. When you appear for the exam, you should know this. We have basically 2 types of prescriptions, pre-compounded and compounded. तो आप लोगों ने अभी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो प्रिस्क्रिप्शन देखा है that is pre-compounded. They are called ready-made prescriptions. Ready-made इसलिए नहीं कि वो ऑलरेडी छपे हुए आते हैं. Ready-made इसलिए कि a doctor wants to say कि तुम्हें पैरासिटामोल खानी है तो he will just write tab paracetamol. He will not write the active ingredients and all the excipients and all the base and all the vehicles of that tablet. He will straight away write the tablet paracetamol. ठीक है. तो जब हम सीधे सीधे ड्रग का नेम लिख देते हैं इन द प्रिस्क्रिप्शन, सो दैट प्रिस्क्रिप्शन इज योर प्री कंपाउंडेड वन, कि ऑलरेडी बनी हुई ड्रग को हमने बस बोल दिया कि यू हैव टू टेक दिस टैबलेट. ठीक है. कंपाउंडिंग में क्या प्रॉब्लम है, मतलब डिफरेंस क्या है? कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन इज दैट प्रिस्क्रिप्शन जिसमें हम क्या करते हैं, इफ इट इज पैरासिटामोल सो आई विल राइट पैरासिटामोल, उसकी क्वांटिटी लिखेंगे. देन इफ वी हैव टू, इफ आई एम एडिंग सम बल्क फॉर्मिंग एजेंट इन दैट, तो मैं उस बल्क फॉर्मिंग एजेंट का भी नाम लिखेंगे. इफ देयर इज सम व्हीकल इन इट सो आई विल राइट द नेम ऑफ द व्हीकल. इफ देयर इज सम स्वीटनर और समथिंग सम कलरेंट, आई विल राइट द नेम. मतलब सारी इंग्रेडिएंट्स जिनसे वो पैरासिटामोल की टैबलेट बनी है, मैं आई विल राइट ऑल दोज इंग्रेडिएंट्स in my prescription, and then I will tell the pharmacist कि you mix all these ingredients in the amount that I have written
then make a powder of it or then make a tablet of it and then give it to the patient. जब हम ये पूरा लंबा प्रोसेस कर रहे होते हैं then it is called a compounded prescription. ठीक है? Understood the difference? So parts of prescription. Now this is important. Why? Because when we will give you exercises and we will ask you कि okay, you find out the mistakes in the prescription. So if you know what are the different parts of prescription और इन parts में क्या क्या important information add या write करनी होती है, then you can very quickly point out the mistakes. Say for example, if I give you a prescription जिसमें डॉक्टर की डिटेल्स ही नहीं है, and now if after this class if you can understand and remember कि भैया डॉक्टर की नेम और डिटेल्स भी डालनी होती हैं, तो ये quickly point out कि okay, this is a mistake in this prescription ma'am. You should write the doctor's details. ठीक है? So parts are, there are 5 main parts of a prescription: superscription, inscription, subscription, transcription, signature. ठीक है? फर्स्ट पार्ट में टाइम लगेगा, बाकी सारे पार्ट बहुत क्विकली हो जाएंगे. ठीक है? सो सुपरस्क्रिप्शन. ठीक है? सुपरस्क्रिप्शन में ये सारी डिटेल्स आती हैं. क्या क्या आती हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू राइट द डेट व्हेन यू राइट द प्रिस्क्रिप्शन. दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हाई. ठीक है? डिटेल्स ऑफ द प्रिस्क्राइबर, लाइक यू आर द प्रिस्क्राइबर, यू आर द डॉक्टर, योर डिटेल्स शुड कम. व्हाट ऑल डिटेल्स शुड कम? योर नेम, योर डिग्री, that means your qualification, your registration number, your contact details. Okay, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में एड्रेस आ जाता है, फोन नंबर आ जाता है, ईमेल आईडी अगर देना चाहो वो दे सकते हो. सो दीज मिनिमम डिटेल्स शुड बी देयर इन द प्रिस्क्राइबर्स डिटेल्स एंड इट इज जनरली रिटन ऑन द टॉप राइट साइड ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन. अगर ये प्रिस्क्रिप्शन है तो टॉप राइट कॉर्नर पे आपकी डिटेल्स होनी चाहिए. उसके बाद first is date, second is prescriber's information, third is patient's details. Again this is important, don't miss out the patient details. Again this is important. आपको patient का name लिखना है, age लिखनी है, gender लिखना है, and if possible you have to mention the weight. Especially important in cases of children. Pediatric age में आपको weight लिखना होगा. ठीक है? So details of patient should be there and all these are a part of your superscription. And lastly the symbol RX. I am sure सबने देखा होगा ये RX. इसमें एक चीज मिसिंग है, X की एक आर्म नीचे तक जाती है, उसकी कुछ इंपॉर्टेंस है. क्या है? I'll just tell you. ठीक है? So now that we know that superscription has got the date, the prescriber's details, the patient's details and RX. Okay? तो अब हमने इनके सब पार्ट्स देखने हैं कि ये कंपोनेंट्स हैं, इनके क्या सब पार्ट्स हो सकते हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, लाइक प्रिस्क्राइबर्स डिटेल में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हैव टू मेंशन योर फुल नेम, डिग्री एंड क्वालिफिकेशन, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर. ठीक है? दिस मस्ट बी देयर. इट इज नाउ अ रूल. यू कांट स्किप कि रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डालता, आपको डालना पड़ता है. ठीक है? Patient details, again I have already told you, this is just a revision. Patient का full name and address, age and gender, mobile number, मतलब contact details हो गए, weight, especially children के केस में, pediatric age में. ठीक है? And अगर when you are taking your history, you generally make this habit that you ask for a history of drug allergy also. अब से लेना शुरू कर देना in future. So if you find out that there is a history of drug allergy, please mention it there only in patient details. That is going to help you. Okay? And the diagnosis, the disease, the final diagnosis that you have made. So all this will comprise the patient details. Clear है? Superscription का last symbol था RX. Symbol R. ठीक है? R is a Latin abbreviation जिसका Latin word होता है recipe और recipier. And इसका meaning होता है take down. मतलब you as a doctor are telling your patient, okay, take this prescription and also take the medicines written on the prescription. ठीक है? So R stands for the Latin word recipe, और recipe जैसे आप घर में रेसिपी बनाते हैं खाने की, डिशेस की, and you just serve it and then say कि please have it. Similarly, you have made the recipe of your treatment and given it to the patient and just saying कि take down. अब ये जो oblique line है that I was saying कि इसमें missing है, oblique line का क्या importance है? Mythological importance है. Yes,
द ग्रीक गॉड जुपिटर हु इज लाइक कंसिडर्ड एज अ गॉड ऑफ नॉलेज, ठीक है, एंड नॉट जस्ट नॉलेज बट ऑल्सो ऑफ हीलिंग, द गॉड ऑफ हीलिंग एंड नॉलेज। तो ये एक वर्शिप की तरह देखते थे कि इट्स लाइक अ आइटरेशन टू गॉड जुपिटर की ओके आपके भरोसे मैं इस पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहा हूं या दे रही हूं, एंड काइंडली ब्लेस मी एंड द पेशेंट। इट इज दैट, इट इज काइंड ऑफ अ वर्शिप दैट स्लैंट या ओब्लिक लाइन, ठीक है। इंपॉर्टेंस हम लोग अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डेट की क्या इंपॉर्टेंस थी, तुम्हारे डिटेल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, पेशेंट की क्या है, पेशेंट का नेम, पेशेंट की डिटेल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज एट टाइम्स क्या होता है, देयर इज स्विचिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। सेम डायग्नोसिस के प्रिस्क्रिप्शन अगर अदला बदली हो गए, और इमेजिन करो वन वाज एन एडल्ट एंड अनदर वाज अ चाइल्ड, राइट, तो रॉन्ग मेडिकेशन हो जाएगी एंड देयर विल बी लॉट ऑफ सीक्वेली टू इट। So always to avoid giving wrong treatment to wrong patient, please always write the patient details also. Okay. Next part आ गया inscription, ठीक है। सुपरस्क्रिप्शन खत्म हो गया हमारा, हमें अब सुपरस्क्रिप्शन में क्या ध्यान रखना है, पेशेंट डिटेल्स, सबसे पहले डेट, डॉक्टर्स डिटेल मतलब प्रिस्क्राइबर डिटेल, पेशेंट डिटेल एंड RX, याद रहेगा। अब अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन तुम लोग देखते हो, एटलीस्ट इनमें अगर कोई मिस्टेक है, कैन यू पॉइंट आउट द मिस्टेक्स? वेरी गुड। इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन इज द टेक्निकल पार्ट, द नॉलेज पार्ट ऑफ योर्स। इट इज एक्चुअली द मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन जिस पर्पज से तुम लिख रहे हो, मतलब इसमें ट्रीटमेंट आएगा, ठीक है। जो बॉडी है प्रिस्क्रिप्शन की, जो तुम देखते हो ड्रग्स लिखी हुई होती हैं, दैट विल कम इन इंस्क्रिप्शन। सो दैट इज योर नॉलेज पार्ट की अगर ये डायग्नोसिस हुई, इसको कौन सी ड्रग देनी है, कौन सी ड्रग नहीं देनी है, रैशनल कॉम्बिनेशन क्या होगा, इरैशनल कॉम्बिनेशन क्या होगा, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन देना, मीन्स ऑल योर जजमेंट्स एज अ डॉक्टर दे विल एक्चुअली बी रिफ्लेक्टेड इन दिस इंस्क्रिप्शन। इसमें भी कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एवरीथिंग इज रिटन ऑन अ स्लाइड, मैं ऐसी जनरली बताते जा रहे हैं एंड यू कैन रीड ऑल्सो। ड्रग्स के नेम्स आएंगे इसमें, बी वेरी वेरी केयरफुल कि आपको बहुत नीट एंड क्लीन लिखना है। अब रूल आ गया है कि आपको जेनेरिक नेम्स ही लिखने हैं, यू हैव टू अवॉइड राइटिंग ब्रांड नेम्स। सो वी मे गिव यू प्रिस्क्रिप्शन जिसमें ब्रांड नेम्स लिखे होंगे, सो वी वांट टू सी वेदर यू नो दिस कि जेनेरिक नेम लिखा है कि ब्रांड नेम लिखा है। सो यू हैव टू पॉइंट आउट कि ओके जेनेरिक नेम इज नॉट रिटन, सो दिस इज नॉट करेक्ट। एंड देन एज अ रूल ही हो गया है अब, यू हैव टू यूज कैपिटल लेटर्स। When you are writing the name of drugs, you have to write it in capital letters. Is this clear? Never forget this. Tablet का TAB हो गया, tab paracetamol, paracetamol should be in uppercase, ठीक है। उसकी डोज इंपॉर्टेंट है, आप ड्रग का नाम लिखोगे फिर आपको उसकी डोज बतानी है, ठीक है। सो इंस्क्रिप्शन में यू हैव टू राइट द ड्रग डिटेल्स। अब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस हैं दैट यू शुड कीप इन योर माइंड। Every drug detail has to be started with a separate line. ऐसे नहीं एक ही लाइन में एक ड्रग लिखी, कॉमा लगा के दूसरी ड्रग लिख दी। वन ड्रग फर्स्ट लाइन में आ गई, नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट द नेक्स्ट ड्रग। कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू क्या होता है, उसमें हम दवाई एक्चुअली बना रहे होते हैं कि बेसिस बनाया, एडजुवेंट बनाया, करेक्टिव भी, हर एक चीज आपको मेंशन करनी होती है। वी विल नॉट गो इन डिटेल, डोंट वरी। इंपॉर्टेंट कैच पॉइंट्स हैं, इस इंस्क्रिप्शन पार्ट में आप एब्रीविएशन यूज नहीं करेंगे। पैरासिटामॉल मीन्स पैरासिटामॉल, इट इज नॉट PCM, ठीक है। सो नेवर राइट एब्रीविएशंस ऑफ एनी ड्रग्स, नेवर राइट एब्रीविएशंस ऑफ एनी यूनिट्स ऑल्सो। लाइक माइक्रोग्राम मतलब आपको माइक्रोग्राम लिखना है, MCG नहीं लिखोगे। मिलीग्राम मतलब मिलीग्राम लिखना है, एंड इसके भी इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस है बिकॉज कुछ ड्रग्स हैं विच आर टू बी टेकन इन मिलीग्राम, और गलती से आपकी एब्रीविएशन के चक्कर में वो मिलीग्राम का माइक्रोग्राम हो गया ना, तो पेशेंट तो सीधे नीचे से ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। सीरियसली वी हैव सच ड्रग्स, जरा सी डोजेज चेंज करने में ही यू माइट किल योर पेशेंट एंड देन यू गो टू जेल, ठीक है। फांसी वहां तक तो नहीं गए यार, देखो। फिर डोज की जब हम बात करते हैं, व्हेन इट कम्स टू डोज, व्हेन इट इज 100, 200, इफ इट इज इन फुल यूनिट देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर आपको 0.5 लिखना है
तो नॉट, डोंट जस्ट राइट 0.5, यू हैव टू राइट 0.5. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद ऑल दिस. ये अगर आप मिस्टेक करते हैं, मेरा तो कुछ भी नहीं जाएगा. अगर आपने यहां नहीं पढ़ा और आपको नहीं आया तो कहीं ना कहीं तो आप समझ जाओगे. ठीक है, लेट्स come to the next part of prescription. So we have discussed superscription, inscription, then is your subscription. Subscription is actually ये जो blue line लिखी है, that is subscription, which we generally don't see in the modern prescriptions now. ठीक है, बेसिकली ये सब्सक्रिप्शन होता है फार्मासिस्ट के लिए इंस्ट्रक्शन. अगर आप कुछ फार्मासिस्ट को बोलना चाह रहे हैं तो यू विल नॉट रिलाई ऑन द पेशेंट, कि आप पेशेंट से नहीं बोलना कि अपने फार्मासिस्ट को जाके बोल दो कि ऐसे ऐसे करे, बिकॉज उसके भी क्या प्रॉब्लम आएगी, पेशेंट आधी बात समझेगा आधी नहीं समझेगा. वो फार्मासिस्ट को उस आधी बात जो समझी है उसमें से कितनी बात बताएगा और वो क्या समझेगा और वो फाइनली क्या बना के देगा. सो इट्स बेटर पुट एवरीथिंग इन राइटिंग. जब प्रिस्क्रिप्शन में आप जो भी कुछ अपने पेशेंट को, अपने फार्मासिस्ट को कुछ भी बताना चाहते हो, एवरीथिंग शुड बी रिटन. अगर आप आपके पेशेंट को ये भी बोलते हो ना कि टैबलेट XYZ हैज टू बी टेकन एम्प्टी स्टमक, तो आपको वो एम्प्टी स्टमक लिखना होगा. आप डिफेंड नहीं कर सकते आपने आपको, मैंने उसको वर्बली बोल दिया एंड नाउ माई वर्क इज डन. नो, यू हैव टू राइट इट. ठीक है. So subscription is the instructions to the pharmacist. ठीक है, like for example ये जो लाइन है MFT इसका मतलब क्या होता है, mix and prepare a mixture and then send such tablets to the patient. So this actually statement is the subscription. आजकल हम लोग नहीं यूज करते हैं. इंपॉर्टेंस मैंने ऑलरेडी बता दी कि मिसकम्युनिकेशन नहीं होता. वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेल योर फार्मासिस्ट, यू हैव रिटन इट, ही और शी विल रीड इट एंड फॉलो इट. ठीक है. देन आता है ट्रांसक्रिप्शन. इसको कहते हैं सिग्नेचर, SIG और सिग्ना, बट दिस इज नॉट योर सिग्नेचर. ठीक है, दिस इज नॉट योर सिग्नेचर. ट्रांसक्रिप्शन मीन्स जैसे हम ट्रांसलेशन करते हैं ना इंग्लिश से हिंदी या किसी और लोकल लैंग्वेज में, तो एक तरीके से ये ट्रांसलेशन ही है. तुमने जो मेडिकल टर्म्स लिखे हैं, तुमने जो ड्रग्स लिखी हैं, दवाइयां लिखी हैं, वो पेशेंट की लैंग्वेज में लिखने को ट्रांसक्रिप्शन बोल देते हैं. तो तुम जो इंस्ट्रक्शन पेशेंट को देना चाहते हो वो ट्रांसक्रिप्शन का पार्ट है. अब के जो हम प्रिस्क्रिप्शन, जो हम प्री कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं, उसमें तो क्या है कि इंस्क्रिप्शन में ही सब कुछ होता है. टैबलेट ड्रग की नेम्स भी होते हैं और इंस्ट्रक्शंस भी साथ साथ हम लिख देते हैं. ठीक है. ये जो डिस्क्रिमिनेशन कह लो या जो डिमार्केशन है, ये ज्यादा इफेक्टिवली या अच्छे से अप्रिशिएट हम कर पाते हैं कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन में. ठीक है. तो ट्रांसक्रिप्शन इज द इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट. लाइक इफ यू वांट टू से दैट यू हैव टू टेक 2 टैबलेट्स ट्वाइस अ डे फॉर 5 days, so this statement is your transcription. Or if you want to say you have to come back and show after 5 days, so this is your transcription. ठीक है. Take empty stomach or do not take with milk. All these instructions which are given to the patient, that is transcription. Again, importance क्या है, मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए. बहुत बार होता है कि पेशेंट को आप जो बोल रहे हैं समझ में नहीं आता है. That happens and it is very normal. Maybe the patient is sick, maybe he doesn't understand your accent. There are so many reasons that your verbal communication he might not register 100% or he might misunderstand. So you write it down so that even later on if he or somebody else reads it, there is no confusion. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट ही रह गया था कि इट शुड ऑलवेज बी रिटन इन प्रेजेंस ऑफ पेशेंट, अगर वो कॉन्शियस है तो, सो दैट पेशेंट नोज कि उसको क्या करना है. अदरवाइज कोई अटेंडेंट हो, ये हमें सबको पता है, कॉमन सेंस है. ऑल दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. पुट अ जीरो बिफोर अ पॉइंट. ठीक है. डू नॉट यूज अननेसेसरी एब्रीविएशंस, डू नॉट यूज योर ओन एब्रीविएशंस. ठीक है. मेक बी, यू शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर. यूनिवर्सल फैक्ट्स यूज करने हैं. TDS, BD ये सब यूज नहीं करने. लैटिन एब्रीविएशंस नहीं यूज करने हैं. BD ट्वाइस अ डे. ठीक है. TDS 3 times a day. अच्छा, एक एब्रीविएशन है CST. हाँ,
कॉमनली आईपीडी फाइल्स में या प्रिस्क्रिप्शन में लिखा होता है, इसका क्या मतलब होता है? CST, and doctors actually write not GST but CST, and this is अपना own created abbreviation है, and ये चला आ रहा है सदियों से। अभी तुम लोगों ने नहीं देखा इसलिए तुम लोग नहीं क्लिक कर पा रहे हो, but commonly seen, continue same treatment and this is written, and एक ऐसे ही फालतू में See, it is written. मैंने अपने आप नहीं बनाया है, CST होता है, and एक बार I have actually seen it, experienced it myself, like one of my known, a known case of heart disease, एंजियोप्लास्टी हुई है 1 महीने पहले। 1 महीने के फॉलोअप के बाद डॉक्टर को दिखाने गए, उन्होंने सब कुछ देखा, एग्जामिन किया, एंड ही और शी वाज क्वाइट हैप्पी। शी सेड कि ओके, यू आर डूइंग वेरी फाइन एंड ओके यू कैन गो, और उन्होंने लिख दिया CST एंड भेज दिया। And then next day she came to me and she was like quite confused कि like और जितने लोग जैसे मैं जानते हैं कि if he or she is a heart patient, उनको तो महीनों तक दवाइयाँ चलती हैं, और मेरे डॉक्टर ने तो मेरी दवाइयाँ ही बंद कर दी सारी। मैंने कहा दवाइयाँ कैसे बंद कर दी? मतलब आई वाज आल्सो सरप्राइज, भाई हार्ट पेशेंट है, एंजियोप्लास्टी 1 महीने बाद तो आप बंद नहीं करते हो। आई जस्ट सेड कि एक बार मुझे प्रिस्क्रिप्शन दिखा दीजिए, उनकी फाइल थी, तो शी जस्ट सेड कि सी नथिंग इज रिटन हियर, नॉट इवन वन सिंगल ड्रग। मैंने भी ढूंढा, थोड़ा CST छोटा सा कहीं लिखा हुआ था और उस पर साइन हुआ हुआ था और वो डेट लगी थी। देन एक्चुअली आई अंडरस्टूड वेयर द प्रॉब्लम वाज, एंड दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है, मतलब ये इट्स नॉट आर्बिट्ररी, इट्स रियल। इट वाज कंटिन्यू सेम ट्रीटमेंट एंड शी वाज हाइपरटेंसिव। इमेजिन, शी हैड स्टॉप्ड हर एंटी हाइपरटेंसिव, शी हैड स्टॉप्ड हर ब्लड थिनर, शी हैड स्टॉप्ड एवरी मेडिकेशन दैट वाज इंपॉर्टेंट फॉर हर टू टेक, एंड हैड शी नॉट टेकन इट फॉर अनदर फ्यू डेज, नो मर तो नहीं जाती, हॉस्पिटल पहुंच जाती, इतनी जल्दी नहीं, एंड द डॉक्टर वुड हैव गॉन टू। सो दिस इज जस्ट अ टेम्पलेट ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन, सो दैट छप जाए दिमाग में कि उस तरफ डॉक्टर की डिटेल्स है, ठीक है, इस तरफ पेशेंट की डिटेल्स है, बीच में आपका ट्रीटमेंट आ जाएगा जो थोड़ा सा नीचे की तरफ चला गया है, ठीक है। डेट वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर चाहो तो ये चेकलिस्ट की फोटो ले लो, दैट्स इट। बट सी, आई कुड हैव एक्सप्लेन दिस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। ये आपको हेल्प करेगा, ये आपको हेल्प करेगा जब आप प्रिस्क्रिप्शन की ऑडिट करेंगे, जब हम आपको एक्सरसाइजेस देंगे, एंड स्पेशली जब आप एग्जाम में वी विल गिव यू द एक्सरसाइज, एटलीस्ट दिस चेकलिस्ट यू शुड नो, और टिक और क्रॉस करते चलो कि ये है, ये नहीं है, एंड दिस विल हेल्प यू, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट पेज, दिस इज द सेकेंड पेज। हाँ प्लीज, समवन कैन डू द ऑनर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।